بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہیلی کاپٹروں کی آوازیں سنتے ہی ہم اپنی لڑکیوں کو مکانوں کے اندر چھپا دیتے ہیں، پھر انہیں زیادہ تر پتلون اور شرٹ وغیرہ پہنا کر رکھتے ہیں۔ راتوں کو زنانہ لباس پہناتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہونے کے بعد کوئی طیارہ یا ہیلی کاپٹر جزیرے کے اوپر سے پرواز نہیں کرتا ہے۔ اگر مارکیوسان کے حکام کو معلوم ہو جائے یا عورتیں ان کی نظروں میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم ایسے ہی اندیشوں میں مبتلا رہتے ہیں کہ حقیقت کا علم ہوگا تو یہاں مسلح فوج آئے گی اور تمام عورتوں کو پکڑ کر لے جائے گی۔ ہم بھی ان کی رائفلوں اور جدید ہتھیاروں کے سامنے بے بس رہیں گے اور اپنی جنت کو پھر سے جہنم ہوتا دیکھیں گے۔ برین ہاورڈ کے لہجے میں جو دکھ تھا وہ اس کے دل کے درد کا عکاس تھا۔ اس جزیرے کے سنگ دل، ظالم اور خطرناک وحشیوں کے دلوں میں بھی یہی درد تھا، یہی درد جدائی کا خوف تھا۔ وہ جان ہارنے کو تیار تھے مگر عورتوں سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ وہ سب ایسے خطرناک فولادی مجرم تھے جنہیں کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، صرف عورتوں کی موجودگی ہی انہیں پگھلا سکتی تھی۔ پاشا نے کہا، واقعی یہاں کے لوگوں کو عورتوں سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے ہر علاقے میں جہاں مرد رہتے ہیں وہاں عورتیں لازمی ہوتی ہیں، جہاں عورت نہ ہو وہاں مرد رہنے سے انکار کر دے گا۔ سینکڑوں قیدیوں کو ایک جزیرے میں آزاد چھوڑ کر انہیں سماجی اور گھریلو زندگی گزارنے کی اجازت دے کر عورتوں سے محروم رکھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ آدمی جیل کی چار دیواری میں عمر قید کی سزا بھگت لیتا ہے، لیکن کھلی فضا میں ایک مکان بنا کر عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کا دل اور مکان کی چار دیواری عورت کو پکارتی رہتی ہے۔ انسان کو اس کی فطرت کے خلاف اہم ضرورت سے محروم رکھا جائے تو وہ چور راستوں سے یہ ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ اس وقت ثانی علی کے پاس تھی اور کہہ رہی تھی، ہم نے دور سے اس جزیرے کے متعلق سنا تھا کہ یہاں وحشی درندے رہتے ہیں۔ اب یہاں آ کر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پہلے تو مجرم تھے ہی، لیکن مارکیوسان کی حکومت انہیں یہاں بھیج کر غیر مہذب زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہاں کے حکام اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے آدم کے ساتھ حوا کو کیوں بھیجا تھا۔ یہ حکام آدم کے بیٹوں کو عورت کے بغیر یہاں قید کر کے آدمیت کے خلاف سزا دے رہے ہیں۔ علی نے کہا، بے شک عورت کے بغیر کوئی معاشرہ منظم اور معزز نہیں بن سکتا۔ ہم یہاں کے حکام کو جزیرے کے قوانین بدلنے پر مجبور کریں گے۔ شیتارا کئی بار پاشا کے دماغ میں آ چکی تھی۔ آخری بار پاشا نے کہا، میں ایک مقابلہ جیت چکا ہوں، کل فائنل مقابلے بھی جیت لوں گا اور شیبا کو حاصل کر لوں گا، لیکن یہ لڑکی میری طرف مائل نہیں ہے۔ تم اس کے اندر جا کر میرے لیے محبت پیدا کر سکتی ہو۔ تم من موجی ہو، کسی سے محبت نہیں کرتے ہو، دل بہلاتے ہو، وقت گزارتے ہو، پھر اسے چھوڑ کر دوسری کو فتح کرنے نکل پڑتے ہو۔ پھر اس جزیرے میں چند لڑکیاں ہیں جن سے کوئی محبت نہیں کرتا، جو شازور ہوتا ہے انہیں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ شیبا محبت کرے یا نہ کرے، کل تم اسے جیت کر جبرن حاصل کر لو گے، پھر میں اس کے اندر تمہارے لیے محبت پیدا کرنے کے سلسلے میں وقت ضائع کیوں کروں؟ شکست تسلیم نہیں کرتا۔ وہ علی کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں جیتی ہوئی بازی ہار رہا ہوں اور علی مقابلہ کیے بغیر بیٹھے بٹھائے میری جیت پر قبضہ جما رہا ہے۔ تم ایسی ہی فضول باتیں سوچتے رہو گے، ایک رقیب کی طرح جلتے بھنتے رہو گے تو علی پر غالب آنے کی کسی تدبیر پر کامیابی سے عمل نہیں کر پاؤ گے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کیا تدبیر کروں۔ علی کو دیکھتا ہوں تو یہ فولادی قلعہ دکھائی دیتا ہے، اس کے اندر گھسنے کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ کیا تم کوئی دروازہ بنا سکتی ہو؟ میں اسی لیے تمہارے پاس آتی رہتی ہوں اور تمہارے ذریعے اس کی مصروفیات کے متعلق معلوم کرتی رہتی ہوں۔ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور ہاتھ آئے گا جب ہم اس کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اسے اپنے قابو میں کر کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنا تابعدار بنا سکیں گے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اچانک ہی اس پر حملہ کر کے زخمی کر دوں، لیکن اچانک حملہ اس پر ہوتا ہے جو غافل رہتا ہے۔ میں نے کسی لمحے بھی اسے غافل نہیں دیکھا۔ شاید رات کو وہ گہری نیند میں ہوگا تو موقع مل جائے گا۔ یہ مت بھولو کہ وہ لوگ اپنے دماغ کو ہدایات دے کر سوتے ہیں۔ بیڈ روم میں کوئی بھی قدم رکھے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ رات کو کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، لیکن رات کو ایک بار تم میرے پاس آؤ، شاید ایسی کوئی صورت نکل آئے کہ ہم اس پر قابو پا سکیں اور ناکامی کی صورت میں اسے ہم پر شبہ نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، میں رات کو کسی وقت آؤں گی۔ وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ اسے پاشا کے ذریعے علی پر نظر رکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ پاشا اس پر غالب آنے کی فکر میں تھا اور وہ دونوں کو اپنے قابو میں لانے کی تدبیر سوچ رہی تھی۔ یہ بات اس کے حق میں تھی کہ وہ دونوں ایک جزیرے تک محدود ہو گئے تھے
वहाँ उन्हें बराह रास्त अपनों की मदद नहीं पहुँच सकती थी। अली को सिर्फ ख्याल ख्वानी के ज़रिए सहारा मिल सकता था। वो इसी पहलू से सोच रही थी कि ख्याल ख्वानी के ज़राए को किस तरह नाकाम बना सकती है। एक बार अली तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों से कट जाए तो वो फिर पाशा और अली पर काबू पाने के लिए वहाँ के ख़तरनाक मुजरिमों को अपना आलाकार बना लेगी। वो अब तक शीबा, उसके बाप ब्रेन हावर्ड और एक दूसरे बदमाश के दिमागों में जगह बना चुकी थी। आइंदा काम के आदमियों पर तनवीमी अमल करने का इरादा था। वो थोड़ी देर तक खामोश बैठी सोचती रही। उसे भाई सरना की तरफ से इत्मीनान हासिल हो गया था। उसका ब्रेन वॉश हो चुका था। उसके जहन से मेरे तनवीमी अमल को मिटा दिया गया था और उसके दिमाग को नई आवाज़ और नया लहजा दिया गया था ताकि बाद में कभी उसकी नई आवाज़ और लहजे को ना सुन सकूं और उसके दिमाग तक ना पहुंच सकूं। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, भाई के पास पहुंचकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, भाई कैसे हो? अच्छा हूँ, पूरी तरह सेहतमंद हूँ, मगर दिमाग पर बोझ सा है कि पिछली ज़िंदगी की बहुत सी बातें याद नहीं आती हैं। ये ज़िंदगी नई और अजनबी लगती है। मैं तुम्हारी पिछली ज़िंदगी की तमाम यादें मिटा देने पर मजबूर थी। तुमने कहा था मुझे फरहाद के मुतल्लिक बताओगी कि वो कौन है और कहाँ रहता है। मैं उससे इंतकाम लूँगा। भाई जोश में ना आओ। जो लोग उसे साल साल से जानते हैं और उसकी रग रग से वाकफ़ होने का दावा करते हैं, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और तुम तो अभी उसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानते हो। मैं बताती रहूँगी तो बताते बताते एक उम्र गुजर जाएगी। इस अरसे में मैं ही कोई इंतकामी कार्रवाई कर गुजरूंगी। ये अच्छा नहीं लगता कि भाई के होते हुए दुश्मन से बहन इंतकाम ले। ये बातें छोड़ो, अपनी सलाहियतें वापस लाने की कोशिश करो। तुम कहती हो मैं घंटों सांस रोक लिया करता था, मुझे यकीन नहीं आता। थोड़ी देर सांस रुक जाए तो आदमी मर जाता है। फिर तुमने आत्मा शक्ति के बारे में भी बहुत कुछ बताया था, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये रूह बाहर निकलकर फिर वापस जिस्म में कैसे आती है? वो हंसती हुई बोली, ये मैं नहीं समझा सकूंगी। मैंने बेहतरीन फाइटरों, योगा के माहिरों और कई ज़ुबानें सिखाने वाले उस्तादों को तुम्हारी तालीम और तरबियत के लिए रखा है। दिन रात मेहनत करो और लगन से सब कुछ सीखते रहने की कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन तुम मुझसे क्यों नहीं मिलती हो? आखिर हमारी मुलाकात कब होगी? मैं बहुत मोहतात रहती हूँ। जब तुम फरहाद से मगलूब नहीं हुए थे तब हम बहन भाई एक दूसरे के साथ रहते थे। अब ये अंदेशा है कि दुश्मन किसी न किसी तरह दिमाग में पहुँच सकते हैं और तुम्हारे ज़रिए मुझे भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। हम ज़रूर मिलेंगे, तुम उस दिन का इंतज़ार करो और खूब मेहनत करो। मैं बाद में आऊँगी। वो अपनी जगह वापस आ गई। पेपे सरना अब उसके मामले में मददगार और मुआवन नहीं रहा था, इसलिए शितारा तमाम तर मामलात से निमट रही थी। उसने तमाम डमी शिताराओं और सरनाओं से कह दिया था कि वो अपनी अपनी जगह आराम करें या किसी ऐसी जगह जाएं और ऐसे अफराद से ना मिलें जो प्रॉब्लम पैदा करें। वो किसी मामले में दिलचस्पी लेने के लिए वक्त नहीं निकाल सकेगी। पेपे सरना उससे मिलने के लिए तड़पता था और कहता था कि ये कैसी ज़िंदगी है कि बहन भाई एक साथ एक जगह नहीं रह सकते। इसी जहनी परेशानी के बायस वो नए सिरे से तालीम और तरबियत हासिल करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। उसने सोचा, अगर डमी को असली शितारा कहकर सरना के पास भेज दिया जाए तो वो बहन को पाकर खुश रहेगा और दिल लगाकर तालीम और तरबियत हासिल करेगा और जल्द से जल्द बहन के अहम मामलात में उसका मुआवन और मददगार बन जाएगा। उसने भाई की बेहतरी के लिए इस पहलू पर गौर किया। फिर पेरिस में रहने वाली डमी शितारा से राबता किया। वो कार ड्राइव करती हुई हॉस्पिटल के अहाते में दाखिल हो रही थी। जब उसने पार्किंग एरिया में कार रोक दी तो शितारा ने कोड वर्ड्स अदा करने के बाद पूछा, डमी 2 यहाँ क्यों आई हो? वो बोली, मैडम सरना बीमार है, पिछले 2 दिन से हस्पताल में है। आपने पिछले 5 दिनों से राबता नहीं किया। मैं कल से आपको एक अहम खबर सुनाने के लिए बेचैन हूँ। वो अहम खबर क्या है? फरहाद अली तैमूर भी इसी हस्पताल के एक कमरे में है। असली शितारा यकदम से सीधी होकर बैठ गई। फिर उससे पूछा, क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि फरहाद वहाँ है? अगर है तो क्यों है? तुम्हारी मालूमात किस हद तक दुरुस्त हैं? मैडम, कल मैंने देखा हस्पताल के एक हिस्से में फ़ौजी जवानों का पहरा लगाया गया है। मैं समझी कोई अहम सरकारी शख्सियत है जो बीमार है और उसकी हिफाजत के लिए वहाँ फ़ौजी जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। मैं सरना का कमरा तब्दील करना चाहती थी। उसके काउंटर पर आई। वहाँ फ़ौज का एक कैप्टन हॉस्पिटल के इंचार्ज से गुफ्तगू कर रहा था कि मिस्टर तैमूर के कमरे में सिर्फ हमारे फ़ौजी डॉक्टर्स और नर्सें जाएंगी। अपने अमले के तमाम अफराद से कह दें कि मिस्टर तैमूर के कमरे में और इस कॉरिडोर में कोई ना जाए। शितारा ने कहा,
مسٹر تیمور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرحاد علی تیمور ہی ہوگا۔ میں نے کیپٹن کے جانے کے بعد پوچھا، کیا یہ مسٹر تیمور کوئی سیاسی یا فوجی شخص ہیں؟ کاؤنٹر گرل نے کہا، مجھے پتہ نہیں ہے، انہوں نے رجسٹر میں صرف FA تیمور اسپیشل آفیسر ملٹری انٹیلیجنس لکھوایا ہے، اور میڈم دونوں حروف FA سے فرحاد علی بنتا ہے۔ میرے اندر تجسس پیدا ہوا تو میں نے پوچھا، مسٹر تیمور کو کیا ہوا ہے؟ کاؤنٹر گرل نے معذرت چاہی کہ وہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ تب میں کاؤنٹر کے قریب ہی ویٹنگ روم میں بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ فرحاد ہے، اس کے اپنے اس سے ملنے آئیں گے۔ میرا خیال غلط نہیں تھا۔ میں نے 1 گھنٹے بعد ہی پومی کو دیکھا۔ شیتارا نے کہا، پومی؟ ہاں، وہ فرحاد کی اہم ساتھیوں میں سے ایک ہے، جلدی بتاؤ پھر کیا ہوا؟ میں نے اس کا تعقب کیا۔ وہ اسی حصے کی طرف جا رہی تھی جہاں فوجیوں کا پہرا تھا۔ میں آگے نہیں جا سکتی تھی۔ پومی نے پرس میں سے کوئی کارڈ نکال کر آفیسر آن ڈیوٹی کو دکھایا۔ اسے اس کوریڈور سے گزرنے اور فرحاد کے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ شیتارا نے کہا، ہاں، اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ فرحاد بیمار ہے۔ میں اس کے دماغ میں جا سکوں گی، لیکن اب عجلت سے کام نہیں لوں گی۔ ابھی اس کے بارے میں اور زیادہ ٹھوس ثبوت حاصل کروں گی۔ تم ہسپتال کے انچارج اور کسی فوجی افسر سے کسی بہانے گفتگو کرو، میں اس کمرے تک پہنچنے کا راستہ بناؤں گی۔ ڈمی نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہاں کے انچارج سے سرنا کی بیماری کے متعلق گفتگو کی۔ شیتارا نے جواباً انچارج کی آواز سنتے ہی اس کے دماغ میں جگہ بنا لی۔ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ اسے مسٹر تیمور کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ پھر وہ اسے ہسپتال کے ممنوعہ حصے میں لے آئی۔ وہاں کئی فوجی جوان الرٹ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک افسر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ انچارج کو دیکھ کر اٹھ گیا۔ انچارج نے مسکرا کر کہا، مجھے یہاں آنا نہیں چاہیے، پھر خیال آیا کہ میں یہاں کا انچارج ہوں۔ یہ پوچھنا میرا فرض ہے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بندہ حاضر ہے۔ افسر نے کہا، شکریہ، آپ نے پوچھ کر اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت ہوگی تو آپ سے رجوع کریں گے۔ انچارج چلا گیا۔ شیتارا کا خیال تھا شاید وہ افسر یوگا کا ماہر ہوگا، پھر بھی اس نے چانس لے لیا۔ اس کے دماغ میں گئی تو آسانی سے جگہ مل گئی۔ اس کے چور خیالات پڑھے۔ پتہ چلا کہ فرحاد علی تیمور کو کسی نے زخمی کیا تھا۔ گولی دائیں بازو کا تھوڑا سا گوشت اڑاتی گزر گئی تھی۔ اس حد تک معلومات حاصل کر کے شیتارا دل ہی دل میں بھگوان سے پرارتھنا کرنے لگی کہ یہ معلومات سچی ہوں اور وہ اصل فرحاد ہو۔ وہ صبر اور تحمل سے کام لے رہی تھی، فرحاد کے دماغ میں نہیں جا رہی تھی۔ پہلے اس نے افسر کو کسی کام سے اس کمرے میں جانے پر مائل کیا۔ وہ ہر گھنٹے کے بعد کمرے میں جا کر فرحاد کی خیریت معلوم کرتا تھا، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے میں آیا۔ فرحاد علی تیمور بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ افسر کو دیکھ کر اٹھنے لگا۔ افسر نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، سر آپ لیٹے رہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میں صرف ڈیوٹی کے طور پر آیا ہوں۔ فرحاد نے کہا، آرام کیا کرنا ہے، ایسے زخم آتے ہی رہتے ہیں، ہفتے بھر میں یہ زخم بھر جائے گا۔ شیتارا نے غور سے فرحاد کی آواز اور لہجے کو سنا۔ اس کا لہجہ مجھ سے ذرا مختلف تھا۔ شیتارا نے ایک گہری سانس لے کر سوچا، شکر ہے میں نے عجلت سے کام نہیں لیا۔ بائی دا وے، یہ فرحاد کون ہے؟ وہ اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ ڈمی فرحاد تھا۔ بابا صاحب کے ادارے کی جانب سے پیرس میں شہری زندگی گزارتا تھا تاکہ دشمن یہ سمجھتے رہیں کہ میں ان دنوں پیرس میں ہوں۔ وہاں فوج کے چند اعلیٰ افسران جانتے تھے کہ وہ ڈمی ہے، ورنہ پہرا دینے والے فوجی اسے فرحاد علی تیمور ہی سمجھتے تھے۔ شیتارا نے ساری حقیقت معلوم کر لی۔ وہ ڈمی فرحاد زخمی ہونے کے باعث سانس نہیں روک سکتا تھا، اسی لیے ایک دشمن خیال خوانی کرنے والی کو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کے چور خیالات بتا رہے تھے کہ اس شہر میں پومی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ پومی کو اس بات کا دکھ تھا کہ میں نے اس سے شادی نہیں کی۔ مجھے اس بات پر شرمندگی ہے۔ جوانی کی رنگ ریلیاں بڑھاپے میں دکھ پہنچاتی ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا تھا اور کہا تھا، جب تم میری زندگی میں آئیں تو عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی تھیں۔ آج بھی تمہاری عمر ایسی نہیں ہے کہ شادی نہ کر سکو، کوئی دوسرا جیون ساتھی تلاش کر لو۔ وہ بضد تھی، میرے ہی نام سے زندگی گزار دینا چاہتی تھی۔ تب جناب علی اسد اللہ تبریزی نے اسے حجرے میں بلا کر کہا، بیٹی، زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے ہنس بول کر گزارو۔ دین اسلام میں راہبانہ زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے، شادی کر لو۔ وہ ادب سے سر جھکا کر بولی، آپ کی ہدایات سر آنکھوں پر میرے حواس پر وہی چھایا ہوا ہے۔ بزرگ نے کہا، تو پھر اسی صورت اور شخصیت والے شخص کا انتخاب کرو۔ میرا نیک مشورہ ہے، ایک ڈمی فرحاد کو جیون ساتھی بنا لو۔ حضور، یہ بات کھٹکتی رہے گی کہ میں فرحاد کے کھلونے سے خود کو بہلا رہی ہوں۔
तुम अमली ज़िंदगी गुजार कर देखो, यहाँ मैं निकाह पढ़ा दूंगा और डमी को ताकीद करूंगा कि जब तक तुम्हारा दिल माइल ना हो और जब तक तुम इज़्दिवाजी वजीफ़ा अदा ना करना चाहो वो शौहर के हुकूक तलब नहीं करेगा। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी की हिदायत दिल को लगती थीं, फिर उनकी आलिमाना शख्सियत बहुत मुतासिर करती थी। पूमी इनकार ना कर सकी। उसका निकाह डमी फरहाद से पढ़ा दिया गया। फिर वो पेरिस में आकर उसके साथ रहने लगी। शादी को 10 माह गुजर चुके और वो बीवी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी। डमी की इज्जत करती थी, उसे बड़ी मोहब्बत से देखती थी, क्योंकि वो सर से पांव तक फरहाद ही नजर आता था। शितारा ये तमाम हकायक पढ़ रही थी और सोच रही थी। पूमी बड़ी गज़बनाक फाइटर है। फाइटिंग का जो मुनफरिद स्टाइल वो जानती है, कोई और नहीं जानता। अगर इसे काबू में कर लिया जाए तो वो आइंदा बहुत काम आएगी और किसी मौके पर डमी फरहाद भी काम आ सकता है। डमी ने शितारा की मर्जी के मुताबिक अफसर से कहा, आप बाहर जा रहे हैं, प्लीज़ शाम तक किसी को कमरे में ना आने दें। मैं थकन महसूस कर रहा हूँ, सोना चाहता हूँ। अफसर वादा करके चला गया कि शाम 5 बजे तक कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके जाने के बाद शितारा ने उसे थपक कर सुला दिया, फिर उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाकर अपनी जगह हाजिर हो गई। कई बार हमारे मुकाबले में ठोकरें खाने के बाद वो ज़रा संभल गई थी। खूब सोच समझकर ठहर ठहर कर आगे बढ़ रही थी। अभी डमी फरहाद को शिकार किया था और ये इत्मीनान कर लिया था कि डमी जब अस्पताल से घर जाएगा तो वहाँ उसके ज़रिए वो पूमी को असाबी कमज़ोरियों में मुब्तला करेगी, फिर उसे भी अपनी कनीज़ बना लेगी। दुश्मन 3 वक्त खाने की इतनी फ़िक्र नहीं करते जितनी फ़िक्र उन्हें मेरी होती है कि मैं कहाँ हूँ और क्या करता फिर रहा हूँ। शितारा भी यही चाहती थी। वो मुझ पर नज़र रखकर मेरे बेटों और दीगर अजीज़ों की मसरूफियात के मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम कर सकती थी। फिर जजीरे में अली को ट्रैप करते वक्त ये यकीन करना चाहती थी कि मैं ऐसे वक्त अली से गाफिल हूँ या नहीं। वो मेरी गफलत के वक्त ही ऐसा कदम उठाना चाहती थी। लकी 7 मेरे साथ रहने लगी थी। शितारा ने एक बार उस मासूम और नीम पागल को अपना आलाकार बनाया था। उसके दिमाग में रहकर मालूम करना चाहती थी कि मैंने उसके भाई सरना को कहाँ कैद किया है। मैंने उसकी ये चोरी पकड़ ली थी और उसे वार्निंग दी थी कि आइंदा वो एक मासूम लड़की के दिमाग में आएगी तो मैं उसके भाई को सज़ा दूंगा। उस वक्त उसने भाई की सलामती और भलाई के लिए वादा किया था कि कभी लकी 7 के दिमाग में नहीं आएगी, लेकिन अब वो भाई वापस मिल गया था, इसलिए उसने हर तरह से उसकी हिफाजत के इंतजामात कर दिए थे। ब्रेन वॉशिंग और तनवीमी अमल करने के बाद यकीन हो गया था कि आइंदा उसके दिमाग में नहीं जा सकूंगा और ना ही उसे गुलाम बना सकूंगा। वो बड़ी खामोशी से लकी 7 के दिमाग में आ गई। वो आईने के सामने खड़ी हुई थी और मैं उसके बालों को ब्रश करते हुए उसे समझा रहा था कि उसे अपने बालों को किस तरह सेट रखना चाहिए। वो कह रही थी, ओह पापा, मैं क्या करूं? मुझे भूलने की बीमारी है। ये बीमारी नहीं, दिमागी कमज़ोरी है। इंशाअल्लाह ये कमज़ोरी जल्द ही दूर हो जाएगी। मैं टेलीपैथी के ज़रिए तुम्हारा इलाज करता रहूँगा। ये टेलीपैथी क्या चीज़ है? तुम नहीं समझोगी। यूँ समझ लो कि एक तरीका इलाज है। अब ये देखो कि तुम नाम और रिश्ते भूल जाया करती थीं, लेकिन अब तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारा नाम लकी 7 और मेरा नाम फरहाद है और तुम मुझे पापा कहकर मुखातिब करती हो। आप बहुत अच्छे हैं पापा, मैं आपको तो कभी नहीं भूलूंगी। मेरा ख्याल है कि मैं दूसरी बातों को भी याद रखने का इरादा इसी तरह करती रहती हूँ और बाद में भूलती रहती हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ यही ट्रेजेडी होती है। इसका मतलब है कि मैं बाद में आपको भी भूल जाऊंगी। नहीं पापा नहीं, आप ऐसा इलाज करें कि दुनिया भुला दूं मगर आपको याद रखूं। इंशाल्लाह तुम हर बात और हर वाक़या याद रखोगी। मैं तुम्हारी ज़हनी हालत को हर पहलू से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताएं आप कैसी कोशिश कर रहे हैं? बेटे, तनवीमी अमल के ज़रिए अपने मामूल के दिमाग में जो बातें नक्श कर दी जाती हैं, मामूल उसे एक मखसूस मुद्दत तक के लिए नहीं भूलता। मैंने कई बातें तुम्हारे दिमाग में नक्श की, लेकिन तुम दूसरे दिन सब की सब भूल गईं। तुमने मामूला बनने के बाद एतराफ़ किया था, तुम्हें यह एतराफ़ भी याद नहीं रहा। फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं हर बात और हर वाक़या याद रखूँगी? मैं अपने तौर पर मज़ीद कोशिश करूँगा। नाकामी हुई तो दुनिया के मशहूर व मारूफ ब्रेन सर्जनों से रुजू करूँगा। मैं बातें करता हुआ उसके साथ रिहाइश गाह से बाहर आया। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने आधा घंटा पहले बताया था, तुम्हें इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, भूलना नहीं चाहिए, ठहरिए मैं याद करती हूँ। वो कार के पास आकर रुक गई, एक हाथ से सर थाम कर सोचने लगी। मैंने कहा,
मैं इशारा देता हूँ, शायद याद आ जाए। इशारा है मरीज़ा। वो सोचते सोचते चुटकी बजाकर बोली, हाँ, आप ऐसे आदमी के पास जा रहे हैं जिसका नाम मरीज़ा है। ओ माय पुअर बेबी, मरीज़ा नाम नहीं होता। कोई औरत बीमार हो तो उसे मरीज़ा कहते हैं। वो मेरी रिहाइशगाह की दीवार पर लिखे हुए हुरूफ को गौर से देख रही थी। मैंने कहा, ये रूसी ज़ुबान में लिखा हुआ है, क्या तुम पढ़ सकती हो? पापा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। नहीं पढ़ा जा रहा है तो छोड़ दो, यहाँ से चलो। लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि यह मकान किसका है। अगर मैं आपसे बिछड़ जाऊं तो यहाँ मेरी आस्तीन पर लिखा होगा। कोई भी मुझे यहाँ छोड़ जाएगा। आप अभी आस्तीन पर लिख दें। सॉरी बेटी, रिहाइशगाह से मुतल्लिक ना तुम्हें बताऊंगा ना लिखूंगा। आप क्यों नहीं बताएंगे? इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में कोई छुपा हुआ है। सितारा यकीनन मेरी बात से चौंक गई होगी। लकी 7 ने पूछा, मेरे दिमाग में कौन है पापा? वही है जिसकी शामत आई है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरे अंदर कोई है? बेटी, तुम अपनी ज़ात से ऐसी बेनियाज और बेपरवाह रहती हो कि ना अपना नाम याद रखती हो ना मकाम। कभी ये नहीं सोचती कि अभी यहाँ हो तो थोड़ी देर बाद कहाँ ठिकाना होगा। तुम कई दिनों से मेरे साथ हो। तुमने कभी किसी मकान या दुकान के मुतल्लिक कोई सवाल नहीं किया। अब जानती हो क्यों कर रही हो? क्यों पापा? इसलिए कि पेपे सरना की तरफ से अब इत्मीनान हो गया है कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। वो अब तक भाई की हिफाजती तदाबीर पर अमल कर रही थी। उसे तुम्हारे पास आने का वक्त मिल रहा है, मगर एक खौफ से नहीं आ रही थी। अब वो खौफ दूर हो गया है। क्यों सितारा? लकी 7 ने कहा, आप मुझे सितारा कह रहे हैं? ये भी कोई नाम है? बेटी, तुम नहीं समझोगी। ये एक ऐसी मगरूर लड़की का नाम है जो सारी दुनिया पर हुकूमत करने और मेरे बेटे को कत्ल करने का ख्वाब देख रही है। मैंने वार्निंग दी थी कि कभी वो मेरी बेटी के दिमाग में आएगी तो उसकी सज़ा उसके भाई को मिलेगी। पापा, आप पागलों की तरह क्या बोलते जा रहे हैं? क्या वाकई मेरे दिमाग में कोई है? हाँ बेटी, तुम ज़रा खामोश रहो। यूं करो, कार में बैठो, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ। अपने कमरे से लेकर अभी आता हूँ। मैं तेज़ी से पलटकर उस मकान के अंदर चला गया। लकी 7 कार का अगला दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। वो चुप थी। सितारा उसके अंदर सोच रही थी। कमबख्त बहुत चालाक है, मेरी मौजूदगी का शुबा कर रहा है, हालांकि उसे यकीन नहीं होगा। बस अंधेरे में तीर चला रहा है। वो लकी 7 के ज़रिए उस कार को देखकर सोच रही थी, काश इसमें कोई ख़राबी पैदा कर सकती, फिर फरहाद हादसे में मारा जाता। लकी 7 ने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक डैशबोर्ड के खाने को खोला। उसके अंदर नोटों की कुछ गड्डियाँ रखी हुई थीं और एक पिस्तौल पड़ा हुआ था। लकी ने उसे उठाकर देखा, वो भरा हुआ था। सितारा ने अपने इत्मीनान के लिए उसके एक बुलेट को निकालकर उसका अच्छी तरह मुआयना किया। बुलेट भी असली था। उसने बुलेट को फिर चैम्बर में डाल दिया। सितारा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। मैं किसी भी लम्हे मकान से बाहर आ सकता था। वो लकी 7 के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा कर मेरा सही निशाना ले सकती थी। मुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती थी। वक्त बहुत कम था, फिर भी वो हर पहलू पर गौर करने की कोशिश कर रही थी। एक अहम पहलू ये समझ में आया कि मैं नज़रों से ओझल होने के बावजूद लकी 7 के दिमाग में आकर देख सकता हूँ कि उसने डैशबोर्ड से पिस्टल निकाल लिया है और मेरे इंतज़ार में बैठी हुई है। उसने सोचा, अगर मैं इस लड़की के दिमाग में हूँ तो गोलियाँ खाने के लिए मकान से बाहर नहीं निकलूँगा और कार के करीब नहीं आऊँगा, और अगर आऊँगा तो लकी 7 का निशाना बहका दूँगा। उसने लकी 7 के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। इस तरह यह यकीन हो गया कि मैं उस लड़की को अपने तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा और ना ही पिस्तौल वाले हाथ को बहका सकूँगा। फिर उसने आखिरी फैसला किया कि वो ये सुनहरी मौका हाथ से जाने नहीं देगी। कामयाबी के 99% इम्कानात हैं और 1% नाकामी का चांस है। नाकामी हुई तो वो क्या बिगाड़ लेगा? अब उसके फरिश्ते भी भाई सरना के दिमाग तक नहीं पहुंच सकेंगे। मकान का दरवाज़ा खुला। सितारा ने मुझे बाहर आते देखा। लकी 7 को बिल्कुल मुस्तैद कर दिया। उसने पिस्टल पर अपना स्कार्फ रख लिया था ताकि वो मुझे दूर से नज़र ना आए। मेरे आने का अंदाज़ बता रहा था कि मैं पेश आने वाली वारदात से बेखबर हूँ। मैं अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ कार के करीब आया, फिर अगले दरवाजे को खोला। लकी 7 उसी दरवाजे की तरफ रुख किए बैठी थी। मैंने खुले हुए दरवाजे से जैसे ही अंदर आना चाहा, उसने ठाएं ठाएं की पुरशोर आवाज़ में 2 गोलियां चलाईं। दोनों मेरे सीने पर लगीं। उसके साथ ही खून उबल पड़ा। मैं लुढ़खड़ाकर पीछे की तरफ ज़मीन पर गिरा। सितारा ने देखा था कि निशाना ठीक रहा है,
फिर भी वो 2 गोलियों से मुतमईन नहीं होना चाहती थी। मुझे छलनी करने के लिए उसने लकी 7 को आगे बढ़ाया। वो स्टीयरिंग सीट पर से होती हुई खुले दरवाजे के पास आई। मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसे निशाना लेने के लिए झुकना पड़ा। जैसे ही वो झुकी, पिस्टल आगे बढ़ा। मैंने एक ठोकर मारी। पिस्तौल उसके हाथों से निकलकर दूर चला गया। उसने लकी 7 को पिस्तौल की तरफ दौड़ाया। मैंने उठकर उसे पकड़ लिया, फिर कहा, शितारा जाओ, अभी फीडर से दूध पियो। मैं मकान के अंदर अपने सीने पर बुलेट प्रूफ शील्ड बांधने गया था। ये मेरी शर्ट पर फिल्मी खून फैला हुआ है। और हाँ, मायूस होकर जाने से पहले मेरा एक मशवरा सुन लो। अभी मरीना के पास जाओ, तुम्हारी आंखों के सामने 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो शायद चली गई। तभी लकी 7 ने होश में आकर फिर चौंक कर पूछा, मैं अभी कहाँ थी? यह आपका लिबास? बेटी, ये रंग है, अंदर चलो, मैं लिबास बदल लूँ, फिर हम बाहर जाएंगे। मैं पिस्तौल उठाकर उसके साथ मकान के अंदर चला गया। शितारा ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते हुए मरीना के पास आ गई थी। वो पिछले दिनों मरीना से राबता करना चाहती थी तो वो सांस रोक लिया करती थी, क्योंकि मैंने उसके दिमाग को लॉक कर दिया था। एक डमी सरना को शितारा के हवाले करने के बाद मैंने मरीना को भी आज़ाद कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग से टेलीपैथी की सलाहियतें मिटा दी थीं। ये जानता था कि तनवीमी अमल का असर ज़ायल होता रहेगा तो उसकी सलाहियतें वापस आ जाएंगी, और जब वापस आएंगी तो सोचा जाएगा कि उसके साथ आइंदा क्या सलूक किया जाए। शितारा ने उसे मुखातिब किया, हेलो मरीना, मुझे पहचान रही हो? वो खुश होकर बोली, ओ शितारा, तुम इस वक्त मेरे लिए रहमत बन कर आई हो। मैं सोच रही थी खुदकशी कर लूँ या हालात से समझौता करके बेहयाई की ज़िंदगी गुजारूँ। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मैं ख्याल ख्वानी भूल गई हूँ। फरहाद ने मुझे ठोकरें खाने के लिए आज़ाद मगर बेयारो मददगार छोड़ दिया है। मैंने 2 रातें चर्च के एक हिस्से में गुजारी हैं। मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं। कितने ही लोग बददियानती से सहारा देना चाहते हैं। उन शैतानों से कतराकर चर्च में गई तो 2 दिन से फादर मुझे समझा रहे हैं कि राहिबा बनकर मजहबी ज़िंदगी गुजारूं। तुम यहाँ पार्क में क्यों बैठी हो? क्या करूं? वापस चर्च में जाऊंगी तो नसीहतें मिलेंगी। किसी का सहारा कबूल करूंगी तो इज्जत को दाव पर लगाना होगा। मैं एक बाजारी औरत बन जाऊंगी। हाय, मैं कितनी ताकतवर थी, कितने उरूज पर थी। आज मैं कैसी जिल्लत की पस्तियों में जा रही हूँ। फिक्र ना करो, मैं आ गई हूँ। तुम पर तनवीमी अमल करके तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतें बहाल करूंगी। तुम अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लोगी। तुम अपने भाई सरना की भी खबर लो। वो फरहाद की कैद में बड़े अजाबों से गुजर रहा है। अब उसकी फिक्र ना करो, वो मेरे पास है। आइंदा फरहाद उसके दिमाग में नहीं जा सकेगा। ताज्जुब है, क्या तुम सरना को उसकी कैद से निकाल लाई हो? उसने खुद भाई को मेरे हवाले किया है। तुमने कैसे यकीन कर लिया कि दुश्मन ने दुश्मनी छोड़ दी है और सरना को वापस कर दिया है? सरना की 2 खास पहचान हैं, एक तो उसका लहजा, दूसरा उसका पैदाइशी निशान। वो बात काट कर बोली, प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए ऐसा निशान बनाया जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी समझ में आ जाती है। आजकल इंसानी खाल के रेशों से सर्जरी होती है जो मुहद्दब शीशे के ज़रिए भी पहचानी नहीं जाती। देखो मरीना, तुम मेरे दिल में शकूक पैदा कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फ़रेब में मुब्तला रहने दूं? ये बताओ, सरना तुम्हें कब वापस मिला है? आज से 5 दिन पहले। फिर तो वाकई तुम धोखा खा रही हो। मैंने कल रात उसे फरहाद की कैद में देखा है। क्या बकवास कर रही हो? जब तुम 2 दिन से आज़ाद घूम रही हो तो फिर कल रात फरहाद के किसी कैद खाने में कैसे गईं? शितारा, हमारे साथ ज़बरदस्त फ्रॉड हो रहा है। मेरी बातें गौर से सुनो। मैं नहीं जानती वो कैद खाना कहाँ है, लेकिन मैं वहाँ गई थी। मैंने सरना को देखा था। उसके जिस्म पर सिर्फ एक निक्कर थी। इस तरह मैंने वो पैदाइशी निशान भी देखा था। शितारा ये बातें सुन रही थी। थोड़ी देर पहले मैंने उसे मशवरा दिया था कि वो मरीना के पास जाएगी तो उसकी आंखों के सामने 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अब वो मरीना की बातें सुनकर समझ रही थी कि मैंने उसे वो मशवरा क्यों दिया था। मरीना कह रही थी, फरहाद सरना को जंजीरें नहीं पहनाता है। वो या उसका कोई आदमी सरना पर कोई जुल्म करने नहीं आता है। सरना खुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहा है। शितारा ने परेशान होकर पूछा, क्या कह रही हो? वो अपने आप पर कैसे जुल्म कर रहा है? वो नशे का आदी हो गया है। जो शख्स कैद खाने में उसके लिए खाना लाता है, वो सिगरेट के कार्टन और हीरोइन के पैकेट्स भी ला कर देता है। मैं क्या बताऊं कि उसकी क्या हालत हो गई है। क्या तुमने उससे बातें की? हाँ, मुझे देखते ही लिपट गया। मैं औरत हूँ, जिसके साथ रातें गुजारी हों उसकी कुर्बत से उसे पहचान सकती हूँ।
वही असली सरना था। मैं कई घंटे उसके पास रही। मुझे मेरा साथी मिल गया था। मैं उसे तन्हा छोड़ना नहीं चाहती थी। उसी कैद खाने में उसके साथ रहना चाहती थी। फिर वापस कैसे आ गई? सरना ने मजबूर किया। कहने लगा, फरहाद भाईजान उसे एक औरत के साथ देखकर नाराज़ होंगे। क्या कहा तुमने? भाई सरना उस दुश्मन को भाईजान कहता है? हाँ, बड़े अदब और एहतराम से फरहाद का जिक्र करता है। नशावर सिगरेट का कश लगाकर नारा लगाता है, या फरहाद लगे दम मिटे गम। मरीना, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर वाकई वो मेरा भाई है तो मैं ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर मर जाऊंगी। मुझे यकीन दिलाओ कि वो मेरा भाई है। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।